Hello student, today is the part number 4, a magnetic effect of current. This is the chapter number 4. Now today topic is magnetic field along the axis of a circular wire. In previous period we have done along the straight wire and at the center of a loop. Okay, let's start magnetic field. So student, whenever you will make this wire, make like this. एक्चुअली ये वायर कैसे रखी है, ये वायर इस तरीके से, कोई सर्कुलर है हमारे पास, इस तरीके से परपेंडिकुलर ऐसे रखे है और इस एक्सिस के अलोंग हम बात कर रहे हैं, दैट्स वाई से हम ओवल टाइप का बनाते हैं. नाउ है ये सर्कुलर. नाउ द रेडियस ऑफ दिस वायर इज ए and we want to find out the magnetic field at point P at a distance r from the center. Okay student, now for to find out the magnetic field at point P, first of all you have to assume or consider a small element, that is a dl. Due to this small element, this will be the r distance, the magnetic field at this point, that will be normal to this r, that is dB, and this dB has two component, one is vertical according to this one is vertical component and this one is horizontal component. Suppose that this one is at angle phi, if this angle is phi, so this will also be phi. Okay, what is this component? This component is dB cos phi and this one is a dB sin phi. Similarly, we will consider a small element here also, that is dl, and this one also perpendicular to this distance x, suppose x, this one is r, this one is x, this one is a, and this x, same distance. Likely it will be two component, one of this and one of this component. Okay, if this angle is phi, this also be phi, and this component will become dB cos phi and this one is a dB sin phi, dB sin phi and dB sin phi, this one is dB. Okay, now dB cos phi and dB cos phi are equal and opposite in direction, that's why it will be cancelled out. The field will be considered due to only this vertical component that will get added. So you have to apply Biot-Savart law. So we know that dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square. Theta is 90 degree, that's why it will become 1. dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin 90 is equal to 1 upon r square. This one is dB. Now what will be the total field due to this element at this element, dB sin phi and dB sin phi. So lots of element across this wire, that's why all the elements will get it up for the find out magnetic field. Due to that we have to make integration. dB is equal to integrate mu or dB sin phi, okay. So what is dB? dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl upon r square, okay, r square. Now sin phi, what is sin phi? This one is the phi, this one is perpendicular, this one is base, this one is hypotenuse. So what is sin phi? Perpendicular upon hypotenuse, a upon x. So you have to place the value of x sin phi here. So it will become mu naught upon 4 pi I dl r square into a upon x. Okay. Student, what is x here?
what is x, this one is r. Okay, so you can place this value. Now integrate from this equation 0 to 2 pi a. कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे हम इस इक्वेशन को? 0 to 2 pi a. क्लियर है स्टूडेंट? तो हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, एक्चुअली वी वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड from this point to this point at a distance. This is given, but the distance is given in the form of x, so it will become x. ये हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लिया, it will become x. Okay, make integration. dB is equal to, this will be b, तो b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन. अब इसमें से वेरिएबल कौन सा है हमारा? तो dl इज वेरिएबल, सो म्यू नॉट आई ए अपॉन 4 पाई एक्स क्यूब, कॉमन आ जाएगा म्यू नॉट आई ए अपॉन 4 पाई एक्स क्यूब कॉमन इंटीग्रेशन ऑफ dl. व्हाट इज dl? 2 पाई a. इंटीग्रेशन ऑफ dl इट मीन्स 2 पाई a. कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं हमको? 0 to 2 pi a. What is 2 pi a? Circumference of this distance. So it will become again mu naught I a upon 4 pi x cube L 0 to 2 pi a. So mu naught I a upon 4 pi x cube, place the limit, into 2 pi a minus 0. ओके, ये 0 रह जाएगा, इसको हम हटा दें, कोई इश्यू नहीं है. 2 पाई 2, तो इट विल बिकम म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब. ओके, दिस इज द डिस्टेंस 2x क्यूब. व्हाट इज x हियर? x, दिस इज हाइपोटेनियस, इट विल बिकम x इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. ओके, पावर हाफ. देखिए स्टूडेंट, हमने पहले यहाँ पे आर ले लिया था बिकॉज हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला वही चल रहा है, तो इसलिए आर लिखा गया है यहाँ पे गलती से, बट इट विल बी एक्स बिकॉज वी आर कंसिडरिंग डिस्टेंस हमें डीएल से लेनी है. क्लियर है? ओके, तो वो मिस्टेक हो गई थी, कोई बात नहीं, तो नो इश्यू. ओके, तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2, what is the value of x? a square plus r square power 3 and also half. This will be the formula for magnetic field on the axis of, along the axis of circular loop. Is that clear? This one is the magnetic field. Okay, अब ये जो डायरेक्शन है, जो फील्ड हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं, तो इट विल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस की पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है. तो इस फॉर्मूले को हम वैसे भी लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 आई कैप. दिस वन अलोंग टू द एक्स एक्सिस मीन्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ओके स्टूडेंट, तो दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ सर्कुलर वायर. सर्कुलर वायर के एक्सिस, सपोज करो दिस वन इज द सर्कुलर वायर और ये इसका सेंटर है, ये एक्सिस. इस पॉइंट पर हम फील्ड फाइंड करना चाहते हैं ड्यू टू दिस सर्कुलर वायर. तो ये सर्कुलर वायर के यहाँ पे हम फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, तो वी विल कंसिडर द स्मॉल एलिमेंट dl एंड दिस वन इज dl. ड्यू टू दिस एलिमेंट एट दिस डिस्टेंस द मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज भी परपेंडिकुलर, ये हम लेके चल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज भी परपेंडिकुलर टू दिस डिस्टेंस. हम परपेंडिकुलर लेके चलते हैं कि हमारा फील्ड कैसे होगा यहाँ पर? परपेंडिकुलर. ओके, हम कैसे करते हैं? करंट ऐसे फ्लो हो रही है. अब इसका थोड़ा सा डायरेक्शन का डिस्कशन कर लेते हैं. तो आपको अगर शॉर्ट में लिखना है, मार्क्स उतने ही मिल रहे हैं. अगर आपको बहुत बड़ा टीचर्स देखा है मैंने, बहुत जो है 3 पेज 4 पेज का डेरिवेशन ये हो सकता है, बट दिस इज वेरी सिंपल एंड ईजी टू राइट इन योर एग्जामिनेशन. ओके, ओनली 4, 5, 6 लाइन से यू कैन राइट. अब यहाँ पर हम जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे, दैट्स विल डिपेंड्स ऑन द केसेस. अगर ये डायरेक्ट नहीं आता एग्जाम के अंदर तो वी कैन राइट द केसेस, बट इस बार आने के चांस है. 2021 में
अगर सब्जेक्टिव पेपर होता है तो इसके आने के चांस हो सकता है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि इसी फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं एट द सेंटर, सेंटर पर हम फाइंड कर सकते हैं। हाउ कैन यू फाइंड? अब हमने कहा कि हमारा जो डिस्टेंस है ये आर, अगर इसको हम 0 कर दे तो ये पॉइंट पी कहाँ पर आ जाएगा? सेंटर पर। तो फर्स्ट केस हम बना देते हैं एट द सेंटर, एट द सेंटर। ओके, अब एट द सेंटर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर? P, यानी कि R की वैल्यू प्लेस 0 कर दीजिए आप यहाँ पर। तो प्लेस द वैल्यू ऑफ R 0 इन दिस इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस वन इज द वेक्टर फॉर्म। B, यहाँ पर 0 कीजिए R की वैल्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? मीन्स 0, क्योंकि हम किस पे बात कर रहे हैं? सेंटर पर। सेंटर का मतलब समझिए। नाउ द क्वेश्चन इज वी वांट टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। इस सेंटर पर हम फाइंड करना चाहते हैं। इट मीन्स दिस पॉइंट P लाइज एट दिस सेंटर, मीन्स R विल बिकम 0। यू हैव टू प्लेस द वैल्यू ऑफ R 0 हियर। सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट I A स्क्वायर अपॉन 2 A स्क्वायर 3/2। इससे 2 कैंसिल, अब ये एक पावर यहाँ से कैंसिल, तो म्यू नॉट I अपॉन 2A। यही इक्वेशन हम सर्कुलर के लिए फाइंड कर चुके हैं। अब हम डिफरेंट केस यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत दूर है पॉइंट रेडियस के कंपेयर में, हम कह रहे हैं कि ये जो R है इट विल सिचुएटेड एट अ लार्ज डिस्टेंस फार अवे फ्रॉम द सेंटर, मीन्स A के कंपेयर में R बहुत बड़ा है। A के कंपेयर में R इज़ वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस, सो A कैन बी नेग्लेक्टेड। अगर हमने A को यहाँ से 0 कर दिया, सिर्फ यहीं पे होगा, ऊपर नहीं होगा, यहाँ पे कंपेयर में हम कंपेयर कर रहे हैं, सो फॉर्मूला विल बिकम डिफरेंट। तो व्हाट इज दैट फॉर्मूला? तो B इज इक्वल टू सेकेंड केस R ग्रेटर देन A, वेन एवर द R ग्रेटर देन A। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इनको लाइटली मत लीजिएगा। R ग्रेटर देन A, R A से बहुत बड़ा है, मीन्स A विल बिकम नेग्लिजिबल। सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट I A स्क्वायर अपॉन 2 0 प्लस R, ये क्या हो जाएगा? 3 2 6/2 यानी कि R3। तो ये क्या बन जाएगा? म्यू नॉट I A स्क्वायर अपॉन 2 R3। समझ आया? A को 0 कर दिया, यहाँ पे आ गया, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया हमारा 3 R3। दिस विल बी द फॉर्मूला। अब हम ये कह सकते हैं, अब उसने क्वेश्चन को और घुमाया और बोला कि क्वेश्चन में n नंबर ऑफ टर्न्स है। अभी तो मैं डायरेक्शन पे भी आऊँगा, अभी हमें करंट फ्लो करानी है इसके अंदर। करंट हम दोनों तरीके से फ्लो करा के देखेंगे, ठीक है ना? तो चलिए अब मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन क्या था हमारा कि R³ हो गया, ये A स्क्वायर हो गया। अब और क्वेश्चन में क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है? उसने कहा कि R इज़ वेरी स्मॉल, R तो 0 करके हमने देख लिया, नथिंग, ये हम कर सकते हैं। हाँ, अगर बोला गया कि n नंबर ऑफ टर्न्स है, क्या बोला हमें? n नंबर ऑफ टर्न्स, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस वन इज n। किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको? n से। म्यू नॉट I n I A स्क्वायर, A इज द डिस्टेंस, राइट। अब स्टूडेंट इसमें एक चीज़ और आती है, अब वो है हमारा जो है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट एरिया और करंट को लेके डेवलप किया जाता है। अब यहाँ पर हम करंट और एरिया दोनों डेवलप कर सकते हैं। ये एज इट इज आ जाएगा भाई नीचे इस वाले फॉर्मूले में, 2A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 3/2। अगर n की वैल्यू इसमें पुट करते हो, सिंपल इसके लिए फाइंड कर रहे हो तो n इसमें। तो मैं क्या कह रहा हूँ, डाइपोल मोमेंट जो होता है I इंटू A, ये हमारा डाइपोल मोमेंट होता है। तो यहाँ से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए हम A से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें डिस्कस कर लेंगे, अभी थोड़ा सा ये ओवर हो जाएगा, फिर पल्ले नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये था हमारा मैग्नेटिक फील्ड इन डिफरेंट केसेस या डिफरेंट सिचुएशन। नाउ द क्वेश्चन इज, अब करंट अगर ऐसे फ्लो हो रहा है तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड? अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो इसके लिए मैं सिंपल बताता हूँ। हमने जब स्ट्रेट लाइन ली
तो करंट की डायरेक्शन को थंब के लिए रखा था, या थंब को करंट की डायरेक्शन में रखा था नाउ, और कर्ल कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड के लिए। अब हम क्या करेंगे, हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए थंब की डायरेक्शन रखेंगे और कर्ल करेंगे, मतलब इजी प्रोसेस है ये। कैसे, ये लिया मैंने, अब करंट ये फ्लो हो रहा है, यही तो फ्लो हो रहा है इसमें, तो करंट की डायरेक्शन कर्ल को अब कंसीडर कीजिएगा, करंट की डायरेक्शन कर्ल से रिप्रेजेंट कीजिएगा, अपोजिट कर दीजिए बस, ये करंट की डायरेक्शन कर्ल से एंड द मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, थंब जिधर रिप्रेजेंट होगा तो आउटवर्ड। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड, वो आउटवर्ड हो गया। अब अपोजिट, अगर करंट की डायरेक्शन एंड क्लॉकवाइज है, दिस वन इज द एंटी क्लॉकवाइज, अगर करंट की डायरेक्शन है क्लॉकवाइज है ऐसे, तो क्लॉकवाइज, अब इसको रखिए, अब देखिए थंब किधर जा रहा है, थंब आर गोइंग टू इनसाइड, तो इन दैट केस द मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ड। आई होप यू गॉट इट। ये दो चीजें रखिए, जब आप स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, इन दैट केस यू हैव टू कंसिडर योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। whenever you will take example of a circular loop, in that case you will consider your fingers as a curl in the direction of current and thumb will represent the direction of magnetic field. This will be the difference these two. हम इससे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, ये करंट ऐसे फ्लो हो रही है, करंट ऐसे रखा, फिर ऐसे करके हम ये फाइंड कर सकते हैं, तब भी हमारा आउटवर्ड है, बट इट इज़ द इजी प्रोसेस जो मैं बता रहा हूँ आपको, आप ये भी यूज कर सकते हो। तो स्टूडेंट, ये था हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द सर्कुलर एक्सिस। तो अब हम जो बात करेंगे न्यूमेरिकल्स इन नेक्स्ट पीरियड या नेक्स्ट लेक्चर, वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल्स। ओके, टिल देन बाय।